الدنيا والآخرة خير وأبقى. قال النبي صلى الله عليه وسلم: للصائم فرحتان، فرحة عند فكره وفرحة عند لقاء ربه. اللہ رب العالمین کا شکر و احسان ہے کہ اس نے موسم کو ہمارے لیے سہانا کر دیا، اور اس بات پر اللہ رب العالمین کا ہم شکر ادا کریں کہ آج اس نے ہمیں ایک ساتھ عید منانے کا موقع عنایت کروایا۔ درود و سلام ہو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کی سنت کی ادائیگی کے لیے ہم اس عیدگاہ میں حاضر ہوئے ہیں۔ جوانوں سے اور بچوں سے گزارش ہے جو کھڑے ہو گئے ہیں وہ بیٹھ جائیں اور ادھر ادھر آنا جانا ابھی نہ کریں۔ خطبہ تک آپ سب کو یہاں بیٹھنا چاہیے، حاضر رہنا چاہیے، سننا چاہیے۔ سامعین کرام، عزیز محترم بھائیوں، عزیزوں، دوستوں، ساتھیوں اور خواتین اسلام، اللہ رب العالمین کا سب سے بڑا شکر و احسان یہ ہے کہ آج ہم عید منانے کے لیے ایک جگہ جمع ہوئے ہیں۔ یہ عید منانے کے لیے ہم اس لیے آئے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں رمضان مبارک جیسا عظیم برکت و فضیلت والا مہینہ عنایت فرمایا، اور اس مہینے میں ہمیں روزے رکھا، اور یہ عید انہی روزے داروں کے لیے ہے جنہوں نے رمضان کے مہینے کے فریضے کو ادا کیا، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے: من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ اسی طرح جنہوں نے ماہ رمضان کے اندر قیام کیا، یعنی تراویح کی نماز ادا کی، نفل نمازیں ادا کی، اور اس سنت کو ادا کیا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے چھوڑا، اس کے بارے میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے: من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ اسی طرح یہ عید ان لوگوں کی ہے یا ان لوگوں کے لیے ہے جنہوں نے رمضان مہینے کے اندر لیلۃ القدر کا اہتمام کیا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا: من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ تینوں حدیثوں کے اندر جس بات کا ذکر موجود ہے وہ اس بات کی رہنمائی ہے کہ رمضان مہینے کے اندر جس نے روزے رکھا، قیام کیا، لیلۃ القدر کا اہتمام کیا، تو ایسے لوگوں کے تمام سابقہ گناہ معاف کر دیے گئے۔ اسی اللہ رب العالمین کی عنایت کی وجہ سے، اللہ رب العالمین کے اس فریضے کی ادائیگی کی وجہ سے آج ہمیں یہ عید منانے کا موقع دیا گیا، اور یہ عید منانے کا ہمیں نظام دیا گیا تاکہ اللہ رب العالمین کی ہم شکر گزاری کریں اس بنا پر جو اس نے ہمیں یہ مہینہ عنایت فرمایا، اور اللہ رب العالمین کی ہم بڑائی اور عظمت بیان کریں جس نے ہمیں یہ مبارک مہینہ عنایت فرمایا۔ یہ مہینہ کوئی معمولی نہیں ہوتا ہے۔ ہم نے اس کے بارے میں بہت ساری باتیں، اس کی فضیلت، اس کی عظمت، اس کی برکت، اس کی سعادت کے بارے میں سنی ہوں گی، اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ماہ رمضان کو بڑا بابرکت بنایا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے سامنے موقع بموقع ایسے اعمال کو ہمارے اوپر عائد کیا ہے جن کے ذریعے سے ہم اپنے آپ کو مزید نکھارتے رہیں، اپنے ایمان کو تازہ کرتے رہیں،
ایمان کے اندر اضافہ کرتے رہیں، رب سے بخشش مانگ کر کے ہم اس کے حقیقی قریبی بندے بنتے رہیں۔ اسی مقصد کے لیے تو اس نے یہ مواقع ہمیں دیا ہے، کیونکہ انسان دنیا کے اندر آیا ہے تو انسان سے بہت ساری خطائیں ہوتی ہیں، بہت ساری غلطیاں ہوتی ہیں، بہت سارے گناہ کو کر بیٹھتا ہے۔ ان سب کی تلافی کرنے کے لیے، ان گناہوں سے بخشش کے لیے اللہ تبارک و تعالی مواقع ہمیں نصیب کرتا ہے۔ لہذا جن لوگوں نے، جنہوں نے اس مہینے کی قدر کی، اس کے ضروریات و لوازمات کو انجام دیا اور پورا کیا، آج عید انہی لوگوں کی ہے۔ عید ان لوگوں کی نہیں ہے جنہوں نے کپڑے پہنا، عید ان لوگوں کی نہیں ہے جنہوں نے اچھے اچھے کھانے کھا لیا، عید ان لوگوں کی نہیں ہے جنہوں نے بہت سارے پیسے کسی کام میں لگا دیا۔ عید حقیقت میں عمل کرنے والوں کے لیے، اس لیے کہ تمام اعمال کا مقصد جو ہے وہ یہی ہے کہ ایک مومن بندہ صحیح مومن بنے، ایک مسلمان صحیح مسلمان بنے، اس کے اندر تقویٰ آئے، اس کے اندر پرہیزگاری آئے، اور یہ مہینہ ہمیں ان سب باتوں کی تربیت دے کر کے گیا۔ یہ رمضان کا مہینہ تربیت دینے کے لیے آتا ہے، پریکٹس کرانے کے لیے آتا ہے۔ ہمیں یقیناً یہ مہینہ جب آتا ہے تو مسلمانوں کا رجحان ایک دم بدل جاتا ہے، اور حقیقت میں یہ ظاہر ہوتا ہے کہ واقعی یہ مسلمان، یہ مومن لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کی تعمیل کرنے والے ہیں، یہ اللہ رب العالمین کے حکموں کی پابندی کرنے والے ہیں، یہ اللہ رب العالمین کی بندگی کرنے والے لوگ ہیں۔ کیونکہ رمضان جب آتا ہے تو مسجدوں میں نمازوں کی تعداد میں کافی اضافہ ہو جاتا ہے، اور شاید کوئی ایسا بدنصیب بھی ہو جو اس مہینے میں بھی نمازوں کا اہتمام نہ کرتا ہو، جو اس مہینے میں نفلوں کا اہتمام نہ کرتا ہو، جو اس مہینے میں قرآن کی تلاوت نہ کرتا ہو، جو اس مہینے میں اللہ رب العالمین سے اپنے گناہوں کی معافی نہ مانگتا ہو، اور اس مہینے میں اللہ رب العالمین سے بخشش نہ کراتا ہو۔ ہم نے کہا سنا ہے اور ہم سنتے رہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دعا پر آمین کہی تھی جس میں جبریل امین نے یہ کہا تھا کہ بڑا بدنصیب ہے، یہ لعنت ہے وہ شخص پر جس نے رمضان کا مہینہ پایا اور اپنی مغفرت نہ کرا سکا۔ کتنا بڑا بدنصیب یہ مہینہ، اللہ رب العالمین سے اپنی مغفرت کرانے کا مہینہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کیا تھا اور عطا کرتا ہے، اور سال میں یہ ایک مہینہ ہمارے لیے خصوصی طور پر اللہ رب العالمین کی طرف سے عنایت کا مہینہ ہے۔ سامعین کرام، ہم نے اس مہینے کے اندر اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھا ہے، ہم نے اس مہینے کے اندر اپنے ہاتھوں کو کنٹرول میں رکھا ہے، ہم نے اس مہینے کے اندر اپنے پاؤں کو کنٹرول میں رکھا ہے، ہم نے اس مہینے کے اندر اپنے دماغ کو کنٹرول میں رکھا ہے، اس لیے کہ اس مہینے کے اندر کہیں عام طور پر لوگوں کے درمیان اختلاف، جھگڑا، لڑائی دیکھنے میں نہیں آتا ہے، اور آپس میں گالی گلوچ بھی دیکھنے کو نہیں ملتا ہے، جس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ مسلمان اس مہینے کی قدر کر رہے ہیں۔ تو اس کے ذریعے ہمیں یہ سبق ملا، ہمیں یہ تربیت ملی کہ جن چیزوں سے ہم نے پرہیز کیا ہے ان چیزوں کا تعلق کیا صرف رمضان سے ہے، جن اعمال کو ہم نے انجام دیا ان کا تعلق کیا صرف ماہ رمضان سے ہے؟ ماہ رمضان سے خاص تعلق روزے کا ہے۔ اب روزہ ہمارے اوپر رات سے فرض نہیں ہے، ماہ رمضان میں تراویح کا اہتمام ہم کرتے ہیں، اب وہ اہتمام ہم کو نہیں کرنا ہے، لیکن اس کے علاوہ جو کام ہے
नमाज पढ़ना, सब गाने वाला कहाँ था? तिलावत कुरान करना, गाने वाला नफले अदा करना, जिक्र अज़कार करना, रब से दुआएं मांगना, अपने गुनाहों की बख्शिश मांगना, ये रमजान महीने के साथ खास नहीं है, बल्कि ये हमारी पूरी जिंदगी के साथ खास है, हमारी पूरी जिंदगी के साथ खास है। लिहाजा हमने इस महीने से जो तरबियत पाई है, जो सबक हमने सीखा और हासिल किया है, उसका असर अब हमारे आइंदा के दिलों में भी जाहिर होना चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे ऊपर उम्र भर की ये नमाज का फर्ज किया है। अल्लाह तबारक व तआला ने ताहयात हमारे लिए इस बात को लागू किया है कि अल्लाह तबारक व तआला के जिक्र अज़कार कसरत से क्या करते रहा करो। अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे लिए उम्र भर इस बात को वाजिब किया है, लागू किया है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन से अपने दुआओं की माफी मांगते रहा करो और हमेशा अल्लाह ताला के क़वानीन का ख्याल अपने तमाम मामलात में करते रहा करो। हमेशा हलाल चीजों को इख्तियार करो, हराम कामों से बचो, जायज चीजों को अपनाओ, नाजायज से परहेज करो, हराम कामों से दूर रहो। ये हमेशा के लिए है, पूरी उम्र के लिए है। तो अब हमें इस बात का अहद करना है कि रमजान के महीने में हमने जो तरबियत पाई, हमने जो सबक सीखा और हासिल किया, वो आइंदा भी हमारी जिंदगी में कायम और बाकी रहे, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से ये हमारे लिए बड़ी मेहरबानी और इनायत की बात है कि हमें ये मौके नसीब करता रहता है। सामने किराम, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस मैंने आपके सामने पढ़ी है। रावी हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बुखारी शरीफ की हदीस है कि साए फरहतान फरहतुन इंदा फित्रिही व फरहतुन इंदा लिकाई रब्बिही। आज इसी हदीस के अमल करते हुए हम यहाँ ईद मनाने के लिए आए हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रोजेदार के लिए दो खुशियां हैं। एक खुशी उसके लिए उस वक्त है जब वो इफ्तार करता है। ये इफ्तार रोजाना का जो इफ्तार है वो भी इसमें शामिल है, और आज का जो इफ्तार है जिस फितरा के हम जिस इफ्तार की ईद मना रहे हैं, ये खुशी है। और ये बात भी हमारे ध्यान में रहे कि अल्लाह तबारक व तआला ने अपने इस दीन इस्लाम के जरिए जिसको उसने पसंद किया है, हमें खुशी मनाने का क्या तरीका दिया है, हमें खुशी मनाने का क्या तरीका दिया है। हमें कोई लाइफ खेल कूद और तमाशे करने का तरीका नहीं बताया है, बल्कि अल्लाह रब्बुल आलमीन को याद करने का तरीका बताया, अल्लाह के सामने रुको सजदा करने का तरीका बताया, अल्लाह का जिक्र करने का तरीका बताया। इसी बात का जिक्र अल्लाह तबारक व तआला ने सूरह बकरा की आयत करीमा के अंदर किया है, जहाँ पर रमजान के रोजों का जिक्र किया गया है। वलितुकब्बिरुल्लाह अला मा हदाकुम व लअल्लकुम तशकुरून। कि अल्लाह तबारक व तआला ने रमजान का महीना तुम्हारे लिए इसलिए मुकर्रर किया है कि तुम अल्लाह तबारक व तआला की बड़ाई बयान करो, अल्लाह की किबरियाई बयान करो, और ताकि तुम अल्लाह रब्बुल आलमीन का शुक्र अदा करो। यकीनन एक मोमिन इंसान अल्लाह तबारक व तआला की जितनी बड़ाई बयान करता रहे, अल्लाह रब्बुल आलमीन का जितना शुक्रिया अदा करता रहे, उसका वो हक नहीं अदा कर सकता। इसलिए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन की इंसानों पर, अपने बंदों पर बेशुमार इनायत हैं, बेशुमार मेहरबानियां हैं, रहमतें हैं, जिन रहमतों से इंसान अपनी पूरी जिंदगी में फायदा पाता है। अल्लाह तबारक व तआला की उन नेमतों का, रहमतों का शुक्रिया अदा करना चाहे तो नहीं कर सकता। लिहाजा आज ये खुशी का ये दिन है, जो खुशी हमें रोजे की वजह से मिल रही है, हासिल हो रही है। और दूसरी खुशी का जिक्र हदीस के अंदर किया गया कि दूसरी खुशी जो है उसकी अपने रब से मुलाकात के वक्त है।
जिस वक्त अपने रब से मुलाकात करेगा, यानी क़यामत के दिन रोज़ेदारों के लिए खुसूसी तौर पर अल्लाह तबारक व तआला की इनायत वहाँ भी होगी। हमने हदीस में सुना होगा, फतवा में सुना होगा, फतवे में सुना होगा कि अल्लाह तबारक व तआला ने रोज़ेदारों के लिए एक खास दरवाज़ा जन्नत में मुतय्यन कर दिया है, जिस दरवाजे का नाम बाबुर रैयान रखा गया है। ये रोज़ेदार लोग उसी दरवाजे से जन्नत में दाखिल होंगे और ये पहचान होगी, इस बात की अलामत होगी कि ये वो लोग हैं जिन्होंने रमजान महीने में रमजान की कदर की, रोज़ों की कदर की और रोज़े की ज़रूरत व लाज़िमात को उन्होंने पूरा किया। लिहाजा एक अफसोस की बात ये होती है कि रमजान का महीना गुजर जाने के बाद हमारी मस्जिदें खाली होने लगती हैं, नमाज़ी घट जाते हैं, कम हो जाते हैं। तो ये क्या मामला है? ये इस्लाम नहीं है, ये ईमान नहीं है, बल्कि ये मनमानी दीन है। और इस मनमानी दीन पर हम अमल करना चाहते हैं तो फिर अल्लाह तबारक व तआला हमारे अमल को कबूल करेगा नहीं करेगा, हम उसके ऊपर क्या अल्लाह रब्बुल आलमीन पर क्या यकीन करेंगे, अल्लाह रब्बुल आलमीन से उनके साथ के ख्वाहिशमंद होंगे। लिहाजा ऐसा नहीं है। रमजान की तरबियत और सबक के जरिए हमें अब ये आइंदा भी अपनी जिंदगी को संभाल कर रखना है। सामने किराम, और ये कि रमजान में हमने रोजे रखे और उसकी ज़रूरियात पूरी किए और अब वो रोजा खत्म हो गया, तो उतना करने के बाद अब हमें इस बात पर चुप नहीं हो जाना है कि हमने बहुत कर लिया, हमने बहुत कर लिया, 11 महीने की तलाशी हमने कर लिया। ऐसी बात नहीं है। अब इसके बाद हमें इस बात की दुआ भी अल्लाह रब्बुल आलमीन से करना है कि अल्लाह ताला हमने रमजान के रोजे रखा, हमने रमजान के महीने की और जो इबादतें थी उसे हमने अदा किया, तो अल्लाह ताला तो हमारी इबादतों को कबूल कर ले। सहाबा किराम, असलाफ किराम का ये सेवा रहा, ये आदत रही, तरीका रहा कि जहाँ वो रमजान के पहले से ये दुआ मांगा करते थे कि अल्लाह ताला तुम्हें रमजान का महीना नसीब करना। इसी तरह रमजान गुजरने के बाद वो इस बात की भी दुआ करते थे कि अल्लाह ताला हमने रमजान में जो भी अमाल अंजाम दिया तो उन अमाल को कबूल भी फरमाए। इसलिए कि इंसान ने अपना जो अमल किया, क्या उसके अंदर कोताही रही, क्या उसके अंदर खामी रही, क्या उसके अंदर कमी रही, क्या पता उसका अमल लायक कबूल हुआ कि नहीं हुआ। और हमें ये तरीका दिया गया है, बताया गया है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जब काबा की तामीर की तो उन्होंने ये दुआ मांगी, रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। क्यों? वो नबी थे, उनका काम बिल्कुल खालिस तो हो रहा था, अल्लाह की रज़ा की खातिर हो रहा था, अल्लाह के खुशनुदी की खातिर हो रहा था, लेकिन जिसमें ये हमें सबक दिया गया है, ये दर्द दिया गया है कि बंदा चाहे जितना अच्छा अमल अपने तौर से वो कर ले, उन्हें उस अमल पर फख्र नहीं करना चाहिए, उस अमल को उसे काफी नहीं समझ लेना चाहिए, बल्कि अल्लाह रब्बुल आलमीन की रहमत का, उसकी मेहरबानी का, उसकी हिमायत का हमेशा वो मोहताज है, वो उसका फकीर है। लिहाजा उन्हें अपने अमल की कबूलियत की भी दुआ मांगते रहना चाहिए, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला की फजीलत और उसकी मेहरबानी, उसकी रहमत जब तक शामिल हाल न होगी, पता नहीं हमारा कौन सा अमल कबूल होगा या नहीं होगा। लिहाजा अब आइंदा हमने रमजान के महीने में जिन अमाल को अंजाम दिया और जिन कामों से हमने परहेज किया, आइंदा भी इस बात की जरूरत है कि हम अपने उन अमाल की हिफाजत करें, उन्हें बचा के रखें। यानी रमजान का जो मकसद तक़वा हासिल करना बताया गया था, वो अमल महफूज उसी वक्त रहेगा जबकि हम
बचते रहेंगे। इसी तरह से इस महीने के बाद शव्वाल के रोजों के बारे में हदीस में जिक्र किया गया है। तो शव्वाल के 6 रोजे हैं जिन रोजों की फजीलत ये बताई गई है कि रमजान का 30 रोजा रखा अल्लाह तबारक व तआला एक के बदले में 10 गुना देता है। 30 रोजे रखा 3 को 10 से गुना किया जाए 300 नेकियां और 300 दिन का मुकाबला हो गया, 300 दिन के बराबर हो गया। इसी तरह उसके बाद इसने शव्वाल के 6 रोजे रखा 6 दहाई 60 दिन के बराबर हो गया। तो इस तरह उसने गया पूरे साल के रोजे रख लिया। ये फजीलत इसकी बताई गई। लिहाजा हमें से जो चाहे शव्वाल के रोजे भी रख सकते हैं और शव्वाल का ये रोजा लगातार रखना जरूरी नहीं है। हम बीच में अदा कर के भी रह सकते हैं। बहरहाल जो भी अमल हमें कुरान सुन्नत के अंदर बताया गया है वो हमारी भलाई के लिए है, हमारी नेकी के लिए है, दुनिया को संभालने के लिए है और आखिरत को भी संभालने के लिए है। और जरूरत है इस बात की कि अल्लाह तबारक व तआला की बंदगी में दुनिया के अंदर जितने पाबंदी के साथ रहेंगे, जितने खुलूस के साथ करेंगे, जितने ईमानदारी के साथ करेंगे, अल्लाह तबारक व तआला उसी तरह हमसे राजी और खुश होगा और आखिरत में हमें उसी तरह से इनामात से नवाजेगा और जहन्नम से हमें निजात देगा। यकीनन ये अल्लाह रब्बुल आलमीन की हमारे बड़ी मेहरबानियां हैं जो हमें वो इनाम कर रहा है। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन के इन दी हुई नेमतों की हमें कदर करनी है और अल्लाह तबारक व तआला के दिए हुए इन औकात को हमें ईमान से, ईमान के अमाल से, ईमान के तकाजे से खाली नहीं गुजारना है। इसलिए कि दुनिया की जिंदगी पता नहीं कब किसकी आखिरी जिंदगी है। लिहाजा अल्लाह रब्बुल आलमीन का जिक्र हर हाल में, हर हाल और हर वक्त में करते रहने की जरूरत है। लिहाजा लोगों रमजानी मुसलमान न बनो बल्कि रब्बानी मुसलमान बनो। रब्बानी मुसलमान यानी रब को मानने वाला मुसलमान। और वो रब सिर्फ रमजान का रब तो नहीं है, वो तमाम महीनों का रब है, हमारी पूरी जिंदगी का रब है। इसलिए हमारी जिंदगी के उसने जितने कानून लागू किया है, जब तक इस कानून को लागू किया है, उन तमाम कानून पर अमल करने का नाम रब्बानी मुसलमान है, रब को मानने वाला मुसलमान है। लिहाजा अल्लाह तबारक व तआला से हम इस बात की दुआ करते हैं कि रब्बुल आलमीन हमने जो टूटी फूटी इबादतें की हैं तो हमारे उन इबादतों को कबूल फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला हमने अपने इल्म और समझ के मुताबिक हमने तेरी जो इबादतें अंजाम दी हैं उन इबादत को सबसे कबूलियत से नवाज दे। अल्लाह तबारक व तआला हमसे जो खताएं हो रही हैं, हमसे जो गलतियां हो रही हैं, तो उन गलतियों को दरगुजर फरमा। अल्लाह तबारक व तआला हमें से जो लोग बीमार हैं तो उनको बीमारी से शिफायाबी अता फरमा। अल्लाह तबारक व तआला जो परेशान हाल हैं तो उनकी परेशानी को दूर फरमा। अल्लाह रब्बुल आलमीन जो मकरूर हैं, कर्जे में पड़े हुए हैं, अल्लाह ताला को उनके कर्ज की अदायगी का रास्ता पैदा फरमा। अल्लाह रब्बुल आलमीन तो हमें दुनिया में जब तक हम जिंदा रहें नेक अमल करने की तौफीक अता फरमा और बुराइयों से, गुनाहों से बचने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह तबारक व तआला हमने तेरे दीन को इख्तियार किया है तो इस दीन की हकीकत को, इसकी अहमियत को जानने की तौफीक अता फरमा और इस दीन पर कायम रहने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह तबारक व तआला हमने तौहीद को इख्तियार किया है, हमें इस बात पर यकीन है कि तेरे सिवा कोई माबूद नहीं है। लिहाजा तो हमें अपनी इबादत पर कायम रहने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह तबारक व तआला तो हमें किसी भी तरह के शिर्क से बचने और दूर रहने की तौफीक अता फरमा। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार। रब्बना अफ़रिग़ अलैना सब्रन व सब्र वंसूरना अलल क़ौमिल काफ़िरीन। रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमतन इन्नका अंतल वह्हाब। रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमतन इन्नका अंतल वह्हाब। रब्बना ला तु'आख़िज़ना इन नसीना अव अख़्तअना
ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا وانصرنا على القوم الكافرين رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم الحساب رب اغفر لنا وانت خير الراحمين ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين